Hello children, how are you all? Children, I hope you all are doing well, watching the videos, completing your work and learning the concepts. Try to understand the concept. Don't memorize the things. You read more and more chapters. You will understand the concept only when you do the reading of the chapters. So chapters पढ़िए तभी आपको समझ में आएगा. So children, once again I welcome you all to the computer class 3. Children, in the previous video we were doing chapter 4 of our computer book, that is computer book IT Planet, My Bits and Bytes Computer Series 3. So children, we were doing chapter 4, that is Windows Operating System, and you all know that in this chapter we were learning about operating system. So children, in the previous chapter also we have already discussed about it, but I think you are not able to understand. So let us start from the beginning. Means इस chapter को एक बार फिर मैं आपके लिए शुरू करती हूँ. पैराग्राफ एक पैराग्राफ से शुरू करती हूँ so that you are able to understand. So children, today we are going to start with our chapter 4, that is Windows Operating System. Chapter is chapter 4, Windows Operating, PERATING, Operating System, SYSTEM, System. So children, in this chapter we are going to read about operating system. So children, let us read and understand. So here children, what is operating system? First thing which you should know is that what is operating system. So children, as you know, operating system is a software. सबसे पहली बात, operating system एक software है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो पूरे कंप्यूटर के पार्ट्स को विच आर इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग एनी वर्क इज able to run or able to manage or control the program, the different parts of the computer which are used while doing any work on the computer. तो जब भी हम कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं तो वो सारे पार्ट्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसी भी काम को अकम्प्लिश करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए, ऑल दीज पार्ट्स आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो पूरे कंप्यूटर के वर्किंग को या फिर उसके अलग अलग हार्डवेयर पार्ट्स को सभी को मैनेज करता है. तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर which manages and control all the parts of the computer as well as the software, other software, for example application software which are there in the computer by which we do several tasks. So ये सारे काम computer operating system ही करता है. So उससे भी पहले there are some more basics which we should understand. So let us write and understand. So children, here H is, what is a Windows? H is, it यानी कि is operating system. It is a software. ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, WARE. It is a software that enables, ANBLES, enables the computer, that enables the computer, COMPUTER, computer. It is a software that enables the computer to understand, to understand the computer commands, commands given by given by the user, only when WICH which works as a interface, interface between computer, computer, AND, and the user, user,
from the beginning, beginning, from the beginning. Then how there have been many operating system, SYTSTEM, system, which are WHICH, which are being being used. Up children, let us understand. So children, as I told you, what is a operating system? Operating system, let us see. It is a software that enables the computer to understand the computer commands given by the user, only which works as a interface between computer and the user. So children, as you know, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर और, कल भी मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर और जो यूज़र है, यूज़र यानी कि वी आर द यूज़र, वी आर यूजिंग द कंप्यूटर, हम दोनों के बीच में एक इंटरफेस और एक लिंक क्रिएट करता है एंड हेल्प्स द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड द कमांड्स विच आर गिवन बाय अस. जो कमांड्स हम देते हैं, जिस कमांड की वजह से प्रोग्राम चलता है या फिर कोई भी काम होता है, एनी वर्क इज डन ऑन द कंप्यूटर, द ऑपरेटिंग सिस्टम makes the computer to understand the commands which are given by the interface by creating an interface between the computer and the user. तो चिल्ड्रन, यहाँ पे मैंने कल भी आपको बताया था, ये जो इंटरफेस है, इट इज़ जस्ट लाइक अ सैंडविच बिटवीन अ मैन एंड अ कंप्यूटर. कंप्यूटर और मैन के बीच में ये इंटरफेस होता है, यानी कि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. तो दोनों को एक दूसरे के को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, इफ़ आई गिव अ कमांड टू द कंप्यूटर, अगर मैं कंप्यूटर को अपना कोई भी कमांड देती हूँ टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, एज यू नो चिल्ड्रन, हम कोई भी कमांड देते हैं तभी कंप्यूटर वर्क करता है. फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर लर्निंग दैट कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क इटसेल्फ. कंप्यूटर कोई भी काम अपने आप नहीं कर सकता. तो जब भी हम कोई काम करते हैं और काम करने के लिए हम कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं, तो दीज कमांड्स आर अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. डायरेक्टली कंप्यूटर इस कमांड को नहीं समझता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उसको समझाने में हेल्प करता है. तो यहाँ पे कंप्यूटर और मैन के बीच में देर इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कमांड. यहाँ पे इंटरफेस का मतलब होता है, हमने समझा था कि इंटरफेस हमने जब वी हैड started this chapter children, I told you this Windows 7 is a graphical user interface. ये graphical user interface है जहाँ पे हम चीज़ों को ग्राफिक्स के वे में देते हैं और उसी के फॉर्म में हम उसे समझते हैं. जैसे कि हम कुछ भी करते हैं कंप्यूटर में यूजिंग द विंडो में कोई कमांड नहीं होता, बल्कि यहाँ पे पिक्चर्स है, इमेजेस है या फिर आपके आइकॉन्स है. दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर या फिर इमेज के फॉर्म में होते हैं या मेनू के फॉर्म में है. तो जो भी हम कमांड्स देते हैं वी आर गिविंग इन द फॉर्म ऑफ दीज ओनली. तो यहाँ पे इफ़ यू आर गिविंग अ कमांड टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी वर्क, आप कंप्यूटर को कोई भी कमांड दे रहे हो ताकि वो कोई भी काम करे, तो वो कौन समझाता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर से कैसे समझ पाता है? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. Operating system is the one which explains and which makes the computer to understand whatever command we are giving. तो जो operating system है, it is a software which makes the computer understand the commands given by us. हम जो भी command देते हैं वो सारे command सिर्फ computer इसलिए समझ पाता है क्योंकि there is a operating system जो हमारे दिए commands को computer को समझाता है और उसे explain करता है. तो because of the operating system only computer is able to understand the commands and it is able to perform the work as per the command. So children, since the beginning बहुत सारे operating system, in the beginning there were no operating system, the computers did not have operating system. तो हम कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोग्राम्स बनाते थे, कंप्यूटर में फीड करते थे और कंप्यूटर चलता था. मतलब एक
लाइन बाय लाइन चीज़ों को हम लिख करके प्रोग्रामिंग करते थे और उन प्रोग्राम्स के थ्रू कंप्यूटर समझ करके अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता था और उन चीज़ों को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उन चीज़ों को समझता था। लेकिन जब से ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास पिक्चर्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, आइकॉन्स के थ्रू हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। एंड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वन इट explains or it makes the computer understand our command and do the useful work. So children, यहाँ पे as we know, now you must have seen at home that चिल्ड्रन आपने घर में देखा होगा कि आपके घर में आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यू आर इन द हाउस, यू आर स्टेइंग इन द हाउस, बट यू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्यों? वाई चिल्ड्रन? बिकॉज देर इज समबडी टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. वो दैट इज़ योर पेरेंट्स. योर पेरेंट्स टेक पेन फॉर एवरीथिंग, योर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, दे मैनेजेस एवरीथिंग. दैट इज़ वाई यू लीड और यू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ. आप अगर एक घर में रहते हैं, आप देखते हैं हर चीज़ कंफर्टेबली होता है, हर चीज़ सिस्टमैटिकली होता है. आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती. सिर्फ आपको खाने पढ़ने लिखने को बोला जाता है, कोई काम करने को नहीं कहा जाता. लेकिन सारे काम घर के सही से हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं? बिकॉज देयर इज़ समबडी हु टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. यहाँ पे कोई है जो हर चीज़ का ध्यान रखता है, हर चीज़ को अपने हिसाब से देखता है, और फिर जो भी घर का काम है कोई भी मिसमैनेज नहीं होता, हर चीज़ स्मूथली चलता रहता है. So have you ever thought, children, why all this happens so properly, so systematically? Because children, there is somebody behind you who takes care of the family, who takes care of your house, who manages everything in the house. So this is your parent, children, who takes pain for everything. जो हमारे घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका केयर करते हैं, उनको सिस्टमैटिक वे में करते हैं. इसलिए हमें घर के किसी भी काम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से हमारे सारे काम हो जाते हैं. सो इस तरह से चिल्ड्रन यहाँ पे भी एवरीथिंग इज़ मैनेज बाय द पेरेंट. आपके पेरेंट्स सब चीज़ को मैनेज करते हैं और हैंडल करते हैं और सब चीज़ स्मूथली चलती रहती है. So similarly children, operating system is the one which manages the complete working of a computer. तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे पूरे घर में जितना भी काम होता है उसको मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है और उसको सिस्टमैटिक वे में चलाता है. तो let us understand children, you must have seen at home that how systematically things are done. This is because of your parents who act as manager. जो आपके घर को चलाने में एक मैनेजर का काम करते हैं और सारी चीज़ों को प्लान वे में चलाते हैं, कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होती है. सिमिलरली चिल्ड्रन, अ कंप्यूटर विच इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट डज नॉट different parts and many tasks at a time, work at a time, and so the computer needs a manager which is called the operating system. So पहले भी मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और सारी पार्ट्स मिल करके कुछ ना कुछ काम करते हैं. लेकिन जैसे घर में अलग अलग चीज़ों को घर का मैनेजर यानी कि आपके पेरेंट्स मम्मी पापा मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, टाइम टू टाइम चेक करते हैं वेदर एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट. और उसी तरह से in the computer also, as different parts are involved in doing any task, so there should be a manager who takes care of everything and who manages everything and who performs everything properly. And so that is why children, we have an operating system which controls and manages all the working of a computer. तो यहाँ पे इसी तरह से जो operating system हमारा होता है वो operating system का काम ही होता है कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी काम हैं, उन सबको वो मैनेज करें और हैंडल करें. तो किसी भी चीज़ में आपने देखा होगा कि अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो इन द स्कूल ऑल्सो यू हैव अ मैनेजर. देयर इज समबडी हु टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. तो वहाँ पे वो उसका काम कुछ खास नहीं होता, लेकिन वो बाकी जितने भी सारे चीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके स्कूल में इन्वॉल्व होते हैं उन लोगों को चेक करता है वेदर दे आर वर्किंग दे आर डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली और नॉट, और उनको क्या करना है ये भी बताता है. तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में वो हेल्प करता है. तो दैट इज़ वाई चिल्ड्रन हियर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स लाइक अ मैनेजर. तो पहले भी मैंने आपको बताया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर पार्ट्स को देखता है, उसके बाद कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पार्ट को भी मैनेज करता है. फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर में होते हैं जिनसे हम अलग अलग तरह के काम करते हैं उन सभी से वो काम करवाता है. मतलब वेदर दे आर डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली और नॉट, वो भी वो देखता है. उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टार्टिंग द कंप्यूटर एज वेल एज closing the computer, these things are also
डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सो द कंप्यूटर नीड्स अ मैनेजर, सो अ कंप्यूटर नीड्स अ मैनेजर। हु इज द मैनेजर? मैनेजर इज हियर चिल्ड्रन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है, इट एक्ट्स लाइक अ मैनेजर, इट इज अ मैनेजर हु मैनेज all the working of the computer, who manage all the working of a computer। ये पूरे कंप्यूटर के वर्किंग को मैनेज करता है, जो भी कंप्यूटर से हम काम करते हैं उन सबको वो मैनेज करता है। Then children, an operating system is a software that helps you to operate the computer system through the various parts. So it is also a system software that helps all the different parts of the computer to do various वर्क। तो ये अलग अलग पार्ट्स से अलग अलग काम करवाने में भी हेल्प करता है। देन इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑपरेटिंग एक्ट्स एज अ मिडल मैन। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मिडल मैन की तरह काम करता है। टोल्ड यू इट इज़ द वन विच इज़ इन बिटवीन, मतलब बिटवीन मैन एंड द कंप्यूटर। मैन इज़ द यूज़र, मैन जो होता है वो यूज़र होता है, और जो आपका कंप्यूटर है वो आपका सिस्टम है जिसको यूज़ कर रहा है वो। अब इन दोनों के बीच में लिंक क्रिएट करना, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना इज़ द वर्क ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों के बीच में एक लिंक, एक इंटरफेस क्रिएट करता है जिससे चीज़ें या काम होने। ऑपरेटिंग सिस्टम is the interface between user and the computer. It creates a relation between user and the computer, and in this way children, it is very easy for the user to connect with the computer. Now children, the most common examples of operating system are MS DOS है, MOS DOS हो गया, Linux हो गया, MUX Linux हो गया, then we have उसके बाद हमारे पास Mac OS हो गया, and then we have MS Windows. These are the most common type of operating system. ये सारे most common type of operating system. Now children, after that let us study about MS Windows. अब MS Windows के बारे में हम पढ़ेंगे। Why about MS Windows? Because in the chapter we are going to read about MS Windows, that is MS Windows 7. तो अभी हम MS Windows के बारे में समझते हैं। What is this MS Windows? It is one of the popular and most commonly used operating system. MS Windows जो है एक most common and most popularly used window है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो children, there were as I told you in the previous window children, in the previous computers children, in the beginning the computer which we used to have, उसमें कोई भी operating system नहीं था, लेकिन when we used operating system into the computer, it was success, and now we are using one or the other operating system in our computers, because with the addition, with the use of operating system, our work has become very easy. पहले जब हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते थे तो हमें लंबे लंबे प्रोग्रामिंग करते थे, बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामिंग्स करते थे, उसके बाद हम कोई भी काम कर पाते थे। लेकिन आज हम सिंपली विद द क्लिक ऑफ द माउस चिल्ड्रन वी आर एबल टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। तो MS ऑफिस हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, MS विंडोज़ हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम यूज़ करके ही इन चीज़ों को सीख जाते हैं, क्योंकि दीज आर वर्क ऑन द क्लिक ऑफ द माउस। माउस के सिंगल क्लिक या डबल क्लिक से हम सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो जितना ही ज़्यादा हम इन कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं, वी लर्न मोर अबाउट दीज कंप्यूटर्स। सो हियर चिल्ड्रन वी कैन सी MS विंडो में हमें Windows 7 पढ़ना है। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट द विंडो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है, लेकिन एक बार फिर पढ़ा रही हूँ, बिकॉज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी easy, मतलब properly. So here children, let us study about MS Windows. What is MS Windows children? MS Windows is a operating system. Today it is most popular software which is used by most of the people. ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर institution में we are using MS Windows only. और ये भी हमें पता है कि it is developed by Microsoft Corporation of USA. This company is from USA. So हमको पता है कि Microsoft Corporation USA has made this operating system.
व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट स्टार्टेड। जैसे ही पहले भी मैंने आपको बताया कि जैसे ही कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं या हम मॉनिटर को ऑन करते हैं, हमारा जो MS विंडो है वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। एकदम मॉनिटर को ऑन करते ही हमारा जो MS विंडोज़ है वो ओपन हो जाता है और उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी काम करना शुरू कर देती है। सो व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के मेमोरी में लोड हो जाता है। एंड व्हेन योर कंप्यूटर इज बूटिंग, व्हाट इज दिस बूटिंग चिल्ड्रन? व्हेन योर कंप्यूटर इज बूटिंग, व्हेन योर कंप्यूटर इज बूटिंग यू सी अ पिक्चर ऑफ विंडो। जैसे ही कंप्यूटर बूट कर रहा होता है हमारे पास विंडो वाला पिक्चर यानी फ्लैग दिखाई दे जाता है। तो देर इज़ अ फ्लैग विच हैज़ अ विंडो, दैट फ्लैग इज सीन ऑन द मॉनिटर। नाउ चिल्ड्रन दिस फ्लैग इज जस्ट लाइक समवॉट, इट इज़ लाइक दिस। ये कुछ ऐसा है, ये इसको हम विंडो कहते हैं और इसमें इस तरह का पिक्चर बना होता है। तो दिस इज़ फ्लैग फॉर विंडो। तो यहाँ पे इस तरह का हमारे जैसे ही कंप्यूटर बूट होना शुरू करता है वैसे हमें ये फ्लैग स्क्रीन पे दिखाई दे जाता है। नाउ सो चिल्ड्रन, प्रोग्राम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट फोल्डर्स एंड फाइल्स। हमने फोल्डर्स और फाइल्स के बारे में पढ़ा है। तो जितने भी प्रोग्राम्स इस कंप्यूटर में होते हैं या इस सॉफ्टवेयर में होते हैं पूरे फोल्डर्स और फाइल्स के फॉर्म में होते हैं। और उसके बाद इट इज़ ग्राफिकल बेस्ड, यानी कि हम यहाँ पे पिक्चर्स का, इमेजेस का या फिर हम कह सकते हैं मेन्यूज़ का या फिर आइकॉन्स को यूज़ करके हम अलग अलग ऑप्शन को ट्राई करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे हमें कोई भी कमांड नहीं देना होता है। इन सारी चीज़ों के थ्रू विद द क्लिक ऑफ विंडो वी कैन ओपन द विंडो एंड वी कैन ऑपरेट एनी ऑफ द प्रोग्राम which is present in this window. So children, it is a graphical based operating system, so you do not have to remember commands as in case in some other operating system. So children, पहले जो operating system हुआ करते थे उसमें हमें commands याद करने पड़ते थे। यहाँ पे logo, if you talk about logo children, logo is also one of the application software. अगर logo में आपको काम करना है तो you cannot perform any task until or unless you remember the कमांड्स। या इसी तरह से हम इससे पहले हमने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया था जिसमें हमको कमांड याद करना पड़ता था और बिना कमांड को याद किए हम कंप्यूटर को नहीं यूज़ कर पाते थे। लेकिन अभी हम तो कीबोर्ड को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं कि हमें कमांड टाइप करने की ज़रूरत है। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ जो भी चीज़ें हमको सामने दिखाई दे रही है वहाँ पे उस चीज़ को हम पॉइंटर के थ्रू जा करके माउस पॉइंटर को यूज़ करके हम उस चीज़ पे जाते हैं, वहाँ पे क्लिक करते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ प्रोग्राम यू विल गो टू द प्रोग्राम। आप मेनू से प्रोग्राम खोलेंगे, यू विल गो टू द प्रोग्राम, यू विल स्विच ऑन द प्रोग्राम एंड देन 2 क्लिक के बाद आपका प्रोग्राम आराम से खुल जाता है। इफ़ इट इज़ प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप इट इज़ स्टिल क्विक, यू कैन यूज़ इट, एक्सेस इज क्विकर। अगर आपके डेस्कटॉप पे वो प्रेजेंट है तो सिंपली बाय क्लिकिंग इट ट्वाइस विद द माउस यू कैन एक्सेस इट या यू कैन ओपन इट एंड वर्क इट। तो अगर आपके डेस्कटॉप पे प्रेजेंट है तो आप क्विकली इसको खोल सकते हो। अगर वो प्रोग्राम में भी है तो आप मेनू में जाकर के इसको विद द सिंगल क्लिक और द डबल क्लिक यू कैन स्टार्ट एनी प्रोग्राम विच यू वांट टू वर्क ऑन। तो यहाँ पे चीज़ें और आसान हो गई। नाउ इट इज़ अ ग्राफिकल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, सो यू डू नॉट हैव टू लर्न और रिमेंबर द कमांड्स। यहाँ आपको ना तो कमांड देने की ज़रूरत है ना ही उसे याद करने की ज़रूरत है। आप माउस को यहाँ पे हम वी आर नॉट यूजिंग द कीबोर्ड, वी आर यूजिंग द माउस। हम माउस को यूज़ करते हैं। विद द क्लिक ऑफ अ माउस वी कैन ओपन एनी प्रोग्राम एंड यूज़ इट। और अगर हम MS पेंट कर रहे होते तो वहाँ पे भी हम MS पेंट में भी जा कर के मेनू से हमें सिर्फ क्लिक करना होता है। कमांड्स को ढूंढ करके हमें जो भी करना, अगर फाइल ओपन करना है, सेव करना है तो सिर्फ हम मेनू में जाके उसे क्लिक करते हैं और कुछ भी हमें नहीं करना। तो जो भी है हमें वहाँ पे सामने हमारे होता है उसको देख करके वहाँ से करना है। उसके अलावा हमें कहीं से भी उसे समझना नहीं है या फिर हमें कहीं से भी याद करके वहाँ लिखना नहीं है। तो यहाँ पे हमें कीबोर्ड की तो ज़रूरत ही नहीं है। दैट इज़ वाई वी कैन से द MS विंडोज़ आर ऑपरेटेड यूजिंग द माउस एंड वी हैव मिनिमाइज्ड द यूज़ ऑफ कीबोर्ड विद द यूज़ ऑफ विंडो।
विंडो के यूज़ के साथ हमने कीबोर्ड का यूज़ तो एकदम कम कर दिया है, या फिर हम उसे सिर्फ जब हमको लेटर्स या नंबर्स को टाइप करना होता है तभी हम उसका यूज़ करते हैं, या कुछ कमांड यूज़ करना होता है, जैसे कि एंटर की यूज़ करना है, स्पेस बार यूज़ करना है, या फिर कैप्स लॉक यूज़ करना है, तभी हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। हम किसी भी कमांड को लिखने या देने के लिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। सो चिल्ड्रन, this is all about the operating system, and now it is very easy with these to use a operating system. So children, till now we have understood all about the operating system. मुझे उम्मीद है कि आपको operating system समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक बार फिर मैंने और भी सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की कि operating system is nothing but it is a manager which creates a link or interface between user and the कंप्यूटर. सो देर इज़ यूज़ ऑफ बोथ. यूज़र का भी हमें यहाँ पे ज़रूरत होता है और हमें यहाँ पे. सो चिल्ड्रन, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड ऑल अबाउट द डेस्कटॉप. सो हमने डेस्कटॉप के बारे में सारी चीज़ें समझ ली थी, एंड नाउ बाय नाउ आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड कि व्हाट ऑल आर प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप. फॉर एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट थिंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप. सबसे पहले हमने आइकॉन के बारे में भी पढ़ा था. तो आइकॉन इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेस्कटॉप. चिल्ड्रन, आप जैसा कि जानते हो हमारे लेफ्ट हैंड साइड जिधर है उस साइड पे विंडो पे एक लाइन से हमें बहुत सारे छोटे छोटे पिक्चर के फॉर्म में लेबल्ड पिक्चर्स और द आइकॉन्स आर रिप्रेजेंटेड, that each icon represent one or the other program. And then children, we also studied about there is a bar, or you can say there is a type of strip which is known as task bar, जिसके में whatever we do in the computer is shown on the task bar. There is a start button on the task bar, and on the other corner children we have time and date. Then we have notification area. Notification area is the status of your system. For example बैटरी हो गया, वाईफाई कनेक्शन हो गया, या फिर जो भी चीज़ें बैकग्राउंड में कंप्यूटर में चल रही होती है वो सारी वो नोटिस आपका नोटिफिकेशन एरिया में दिखाता है. उसके बाद आपका आइकॉन, सम आइकॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द टास्क बार ऑल्सो, जिनको हम टास्क बार आइकॉन्स कहते हैं. देन जो भी चीज़ें कंप्यूटर में प्रोग्राम्स अगर कोई रन कर रहा होता है तो वो भी टास्क बार पे दिखाई देता है. सो यू ऑलरेडी नो अबाउट द mouse, we know about start button, we have understood about date and time, and if you want to fix another date and time, if you want to change the date and time, आप date और time पे क्लिक करते हो, आपके ऊपर पूरा खुल जाता है जिसमें से आप कोई और डेट भी या टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हो. सो चिल्ड्रन, इन दिस वे all that also you have understood. Now starting and closing an application. Now you want to start or close a application. So as we know children, there are n number of programs present in the computer, और उन programs के अंदर भी उनके सब programs भी होते हैं. तो let us understand how, if you want to do use any program, if you want to do any work on a program, how will you start and close it. So children, you will go to the program menu. Program menu में you will have a menu, you will search for the program, and it may be in the sub program also. तो दो मेनू बार खुलते हैं, एक तरफ आपका मेन मेनू होता है, दूसरी तरफ सब मेनू होता है. तो जहाँ कहीं भी आपका प्रोग्राम है, आप उस प्रोग्राम के ऊपर जाओगे, वहाँ पे डबल क्लिक करोगे, आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पे खुल जाएगा. अगर आप वो डेस्कटॉप पे प्रेजेंट है तो यू विल टेक योर पॉइंटर, माउस पॉइंटर टू द प्रोग्राम. व्हेन यू क्लिक ऑन द प्रोग्राम आइकॉन चिल्ड्रन, दैट आइकॉन द कलर ऑफ द आइकॉन चेंजेस. जो उसका कलर हो जाता है, चेंज हो जाता है, और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली वो नॉर्मलाइज हो जाता है. और जब प्रोग्राम वहाँ से दो बार जब हम क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम खुल जाता है. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ हाउ यू कैन ओपन एनी प्रोग्राम. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम. वन इज़ इन द मेनू, कुछ मेनू में होते हैं, कुछ डेस्कटॉप पे प्रेजेंट होते हैं. अगर डेस्कटॉप वाले प्रोग्राम्स को आपको खोलना है और यूज़ करना है तो यू विल सिंपली go to the icon and switch on the program. By clicking it twice, you can open the program. आपका प्रोग्राम खुल जाएगा. या फिर आप राइट बटन से राइट माउस बटन क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे एक लिस्ट खुल जाएगी जिसमें आपको जो भी करना है, आपको ओपन करना है, आपको रीनेम करना है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हैं. डिलीट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, आप सब चीज़ें वहाँ से कर सकते हैं. देन चिल्ड्रन, यू कैन सी हियर, जैसे ही हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, इफ़ यू लुक इनटू पेज नंबर 3030, अगर पेज नंबर 3030 पे आप देखते हो चिल्ड्रन, तो आपके पास यहाँ पे आपने जैसे स्टार्ट बटन, आई हैव टोल्ड यू ऑन योर लेफ्ट हैंड कॉर्नर बॉटम टास्क बार पे सबसे पहला जो राउंड बटन है और उसके ऊपर देयर इज़ अ फ्लैग, विंडो फ्लैग बना होगा, विंडो का फ्लैग बना होगा. दैट
indicates the start button, उसे हम start button कहते हैं। जैसे भी हम उस पर क्लिक करते हैं, we have a list of menu, हम यहाँ पे मेन्यू दिखाई देता है, in that menu we have list of programs, उसमें हमारे पास list of programs होते हैं। You can choose any program which you want to open or use from there। तो यहाँ पे आपने क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। अगर ऑल प्रोग्राम खोलते हैं तो हमको सारे प्रोग्राम जो भी कंप्यूटर में वो सारे प्रोग्राम्स दिखाई दे जाते हैं, और उसके बाद फिर हम यहाँ से किसी भी प्रोग्राम को स्क्रॉल करके किसी भी प्रोग्राम को सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे और वो प्रोग्राम खुल जाएगा। नाउ क्लिक ऑन एसेसरीज, हाँ, या फिर बहुत सारे प्रोग्राम जैसे कि लास्ट टाइम चिल्ड्रन वी हैड डन क्लास 2 में हमने नोटपैड पढ़ा था और हमने MS पेंट पढ़ा था, तो वहाँ पे हम एसेसरीज़ पे जाते थे, ऑल प्रोग्राम पे जाते, स्टार्ट बटन से वी यूज़ टू ओपन द मेनू को ओपन करने के बाद हम विंडो एसेसरीज़ पे क्लिक करते थे। विंडो एसेसरीज़ पे क्लिक करने के बाद चिल्ड्रन विंडो एसेसरीज़ के नीचे हमें और भी प्रोग्राम्स दिखते थे, वहाँ से हम नोटपैड अगर हमको सेलेक्ट करना रहता था वी यूज़ टू सेलेक्ट नोटपैड। इफ़ वी वांटेड टू यूज़ द पेंट प्रोग्राम, हम पेंट पे सेलेक्ट करते थे, और या फिर अगर हमको कैलकुलेटर यूज़ करना होता था तो वी यूज़ टू क्लिक ऑन द कैलकुलेटर। सो इन दिस वे चिल्ड्रन इस तरह से हम इन सभी प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ क्लिक ऑन द पेंट, if you want to click on the paint you will click on the paint। so this is how you will open or start any program। so let us revise children, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जब भी हमको किसी भी प्रोग्राम को ओपन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो where this program is found। if it is on the desktop children, अगर वो डेस्कटॉप के ऊपर है तो आप वहाँ पे जाओगे, you will take your pointer to the desktop, to the particular icon which is on the desktop, and from there you can click it twice, your program will open। and if it is present in the menu तो you will go to start button, आप start button पे जाओगे। from the start button children you will click on the start button, you will have a menu। from the menu you will select for window accessories। window accessories पे click करने के बाद children you will have a list of programs, जहाँ पे all program window accessories के बाद आपके पास list of programs होंगे। from there you can choose whichever program you want to choose। so in this way children your program will get started on the window on your screen and you can perform your work from there। so with this children we have come to the end of this video। watch the videos, complete your work, and we will meet once again in our next video। till then thank you and have a nice day ahead।